Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. It's a joy to be here this morning, stand before you to share the word of God. ये बहुत खुशी की बात है कि आज सवेरे आपके सामने खड़े होकर जो है परमेश्वर के वचन को मैं पेश कर सकता हूँ. Such a wonderful to hear Hindi. What a morning it is. Amen. People getting baptized. I think there's nothing bigger joy for the church to see people coming to Christ. Amen. Amen. लोग जो है परमेश्वर के साथ एक हो रहे हैं बपतिस्मा के द्वारा. इससे शानदार चीज देखने के लिए कुछ और नहीं है. And I was sitting here just watching on the screen. I was trying to understand the feeling probably the parents and the sister was going through to see their dear ones accepting Christ. मैं देख रहा था यहाँ पर बैठकर स्क्रीन में कैसे वो माता पिता और सिस्टर जो है खुशी से जो है उनके क्लोज मित्र क्लोज लोग जाकर बपतिस्मा ले रहे थे. And to parents, thank you very much for leading your children to make this decision. और मैं माता पिता का धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो है अपने बच्चों को अच्छे तरह से पाला है और ऐसे एक डिसीजन ले लिया. In our ministry, children are very close to our heart. और हमारे जो सेवकाई में जो है हम बच्चों को एकदम करीब रखते हैं. Because they are the next generation to stand for Christ. क्योंकि वो अगली पीढ़ी है जो मसीह के लिए खड़े होंगे. Amen. So till that comes up, I'll do the translation also. Parents, I request everyone here, sitting here, invest time in your children. If you want to give something best in your life, give Jesus to them. अपने बच्चों के साथ समय बिताएं. अगर कुछ बेहतर अगर आपको कुछ उनके जीवन में देना है तो मसीह को दें. Spend time, because we get too busy with our own day-to-day stuff. हम अपने दिन प्रतिदिन के जो है कामों में और बिजी हो जाते हैं, लेकिन बच्चों के साथ समय बिताना बहुत ही महत्वपूर्ण है. Listen to them. उनको सुनिए. Speak into their lives. उनके जीवन में बात कीजिए. Because if you don't listen, someone else is ready out there to listen to them. क्योंकि अगर आप उनकी बातों को नहीं सुनेंगे तो बाहर कोई और खड़ा है जो उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार है. If you don't have time to speak into their life, there are plenty of people out there who are just waiting to speak into their life. अगर आपके पास समय नहीं है बच्चों के ऊपर कुछ बोलने के लिए तो बाहर बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं जो उनके ऊपर कुछ बोलना चाहते हैं. If you don't find time to give Jesus to them, there are plenty of things that world will give into their lives. अगर आपके पास समय नहीं है उनके जीवन में यीशु को देने के लिए तो बाहर बहुत सारी चीजें हैं जो उनके अंदर घुसने के लिए तैयार है. Then there's no point coming to pastor, please pray for my children. उसके बाद जो है पासवान के आप पास आकर जो है मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए बोलने में कोई मतलब नहीं. Family परिवार is the first place वो सबसे बड़ा पहला जगह है to show Christ to children. जहाँ पर हम मसीह को बच्चों को दिखा सकते हैं. Don't even put the kind of outsourcing to Sunday school even. और अपने संडे स्कूल में उसको ये चीज को आउटसोर्स भी ना कीजिए. Parents, माता पिता they are responsible for it. वो उनका जो है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को देखें. So please spend time with your children. इसलिए बच्चों के साथ समय बिताने के लिए जो है कोशिश करें. Give them Jesus Christ, उनको मसीह को दे दिए. the best you can give. वो सबसे अच्छा चीज है जो आप दे Rest, सकते हैं. everything will fade away. बाकी सब चीज जो है हार But जाएंगे. the name of Jesus will carry them forever. लेकिन यीशु मसीह का नाम जो है उन्हें आगे ले चलेगा. Amen. आमीन. For I'm not ashamed, Paul says, पौलुस कहता है कि मैं शर्मिंदा नहीं होता of the gospel because it is the power जो of God सुसमाचार के लिए मैं जो है कभी शर्मिंदा नहीं होता क्योंकि वही सामर्थ्य है that brings salvation to everyone who believes. और मैं जो है सभी लोग को उद्धार ले आता है जो भी उस पर विश्वास करता है. Here's a small word of encouragement to everyone sitting in this church. ये छोटा सा एक प्रोत्साहन आप सभी को मैं देना चाहूंगा आज सवेरे. You have the power in your hand. आपके अंदर वो शक्ति है. Use it. उसका उपयोग कीजिए. Use it. उसका उपयोग कीजिए. Sharing the name of Jesus in the community is not just the job or responsibility of a father or of a pastor or few selected ones. जो है समूह में जाके यीशु मसीह को बांटना ये सिर्फ यहाँ के पासवान का ही या फिर कुछ लोगों का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं. Everyone who has tasted Christ Jesus. जो भी जो है यीशु मसीह को आजमा चुके हैं. Everyone who has received Christ Jesus. जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया है. Because they have believed the gospel. क्योंकि उन्होंने उस संदेश पे उस सुसमाचार पे विश्वास किया है. And they have received the salvation. और उन्होंने उद्धार को पाया है. And they know it is the power of God in their hand. और वो जानते हैं कि ये वो सामर्थ है वो शक्ति है जो उनके अंदर है. But many times we don't recognize
recognize that power. लेकिन कई बार वो सामर्थ्य को हम नहीं पहचानते। It can bring transformation in life. वो जो है जीवनों में बदलाव ले आ सकता है। This morning I am inviting you आज सवेरे के समय में आपको जो है इनवाइट करता हूँ, to reflect in your life, अपने जीवन में एक बार देखिए, to see what God is asking you to do this morning. ये देखिए कि परमेश्वर क्या चाहते हैं आपके जीवन के In your द्वारा, life where you have been placed. आपके जीवन में जो भी चीज आपने रिप्लेस किया It है, may be away from India or wherever your native place is. या फिर जहां पर भी आप इंडिया से हो या कहीं से भी आप हो। मेरे लिए उत्तर प्रदेश और बिहार सब एक ही जैसा है. For me everything is India. For me all the states are, But wherever God has placed you, लेकिन जहां पर भी आपको परमेश्वर ने रखा है, that is your mission field. वो आपका मिशन स्थल है। And mission field is not just pastor's job, वो मिशन का काम जो है सिर्फ पासवान का ही but नहीं, for everyone who has received Christ Jesus. जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया वो उन सभी का काम है। Say hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। It is my job to proclaim the name of Jesus. ये मेरा काम है कि मैं यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताऊं, Because I have tasted him. क्योंकि मैंने उनको चखा है। Amen. हालेलुया। So I want you to take this word. Gospel is the power in your hand. और मैं ये बात कहना चाहूंगा कि ये सुसमाचार जो है, ये सामर्थ्य, ये शक्ति है जो आपके हाथों में है, Use it to serve the Lord. उनका उपयोग कीजिए ताकि आप परमेश्वर की सेवकाई को कर सके। You may be working, आप काम कर रहे होंगे, you may be in business. आप बिजनेस कर रहे होंगे, You do not have to become pastor. आपको एक पासवान होना जरूरी नहीं And है। this trip I have been traveling to some places. और ये ट्रिप में मैं कई जगहों जा रहा हूँ, And few pastors were telling me और कुछ पासवान मुझसे कह रहे थे that nowadays everyone want to become pastor. आजकल सभी लोग पास्टर बनना चाहते हैं। Well, praise God. मैंने बोला अच्छी बात है, But you do not have to लेकिन आपको बनना जरूरी नहीं to है proclaim the name of Jesus. परमेश्वर के नाम को उठाने के लिए। All you have to do आपको सिर्फ इतना ही करना is है, to become a witness. सिर्फ उस परमेश्वर को विटनेस करना Witness है। where God has placed you. जहां पर भी आपको परमेश्वर ने रखा है वहां पे एक विटनेस, एक गवाह बना है। Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I really want to acknowledge one thing here, very important. और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो है मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। What a wonderful worship we had. और कितना अच्छा एक जो है आराधना का समय हमारे बीच में I'm a था। person who loves worship. मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो आराधना को बहुत ही पसंद करता हूँ, Anybody can sing, और कोई भी गा सकता है, but only people filled with spirit in truth can worship. लेकिन जो सच्चाई और आत्मा से भरे हुए लोग ही जो है परमेश्वर की आराधना को कर सकते हैं। So thank you team for leading us a wonderful worship. मैं उस टीम का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अच्छे रीति से आराधना को लीड किया। When the spirit leads us together in worship, जब पवित्र आत्मा हमें जो है आराधना में समय में ले चलती है, I don't hear multiple voices, I hear just one voice. मैं किसी और के भिन्न भिन्न आवाजों को नहीं सुनता, लेकिन मैं सिर्फ एक ही आवाज को सुनता The हूँ, spirit connects us, और वो आत्मा जो है सबको जोड़ देती है। singing for that one name, Jesus. वो एक नाम के लिए गाना जो है यीशु मसीह। Amen. हालेलुया। If at any point, I don't see that happening, but if at any point, if God brings me here, I would definitely love to come to this church. अगर और किसी भी समय अगर मैं इस देश में आता हूँ तो मैं पसंद करूंगा कि मैं एक कलीसिया का एक भाग बनूं। And how Pastor Binu Raj will accept me into this community. और मैं विश्वास करता हूँ कि पास्टर बिनु मुझे एक्सेप्ट भी करेंगे। Amen. To be part of this church. Thank you, Pastor, for having me here this morning. धन्यवाद पासवान जी आज सवेरे मुझे यहाँ पर पाने के लिए। It's a joy to be here in this community of wonderful people worshiping the Lord. शानदार लोगों के बीच में जो संगति करना बहुत ही अच्छी बात है। Shall we close our eyes for a moment? हम अपनी आंखों को बंद करें। Just invite Holy Spirit into our hearts and mind this morning हम पवित्र आत्मा को हमारे दिलों में और मनों में ले आएंगे। with a prayer that God speak to me this morning. और आज सवेरे जो प्रार्थना मेरे से परमेश्वर ने की It's है, not about who is preaching. इसका ये नहीं है कि कौन यहाँ पे प्रचार कर रहा है। Preacher is just a medium to bring the word. प्रचार करने वाला सिर्फ एक माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर बात करता The है। word belongs to God. परमेश्वर का वचन वो परमेश्वर का Ask है। God to speak to us. परमेश्वर से कहेंगे कि वो हमसे बात करें। Heavenly Father, we come before you this morning प्रिय पिता आज सवेरे आपके चरणों में हम आते हैं in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम के, your Son. आपके बेटे के द्वारा। We commit our lives this morning हम अपने जीवन को आपके हाथों में as सौंपते we हैं। sit at your feet. जैसे हम आपके पाँवों के तले बैठते हैं, We open our ears हम अपने कानों को खोलते हैं to listen to your whispers. आपके आवाज को सुनने के लिए। Open our minds so that we can understand your word, Lord. हमारे जो है दिमाग को खोल ताकि हम आपके वचन को समझ पाए। Open our hearts that we can receive it without any hesitation. हमारे हृदय को खोल ताकि हम तेरे वचन को जो है खुले दिल से जो है स्वीकार कर सकें। We invite the work of the Holy Spirit in our midst. हम पवित्र आत्मा के काम को हमारे बीच में जो है स्वीकार करते हैं। Let your word, the living and active word,
work in our hearts and mind this morning, everyone who's sitting here. आपका जिंदा शब्द जो है वो हमारे सभी के बीच में काम करने पाए। Thank you for your presence, Lord. आपके हुजूर के लिए धन्यवाद करते In हैं। Jesus' name we ask prayer. यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं। Amen. In India, when you give to mic to an Indian, जब आप एक माइक एक इंडियन के हाथ में देखते हैं, I don't think I have to say anything else. मुझे और कुछ कहने की बात नहीं है, But I am in New Zealand, so I'll try to follow the timing here. लेकिन क्योंकि मैं न्यूजीलैंड में हूँ, मैं समय का पालन करने का कोशिश करूंगा। I remember Pastor Verghese when we invite speakers to our conferences. मैं ये बात को सोचता हूँ जब पासवान वर्गीस जो है गेस्ट को अपने कॉन्फ्रेंस में बुलाते हैं, So when the guest speaker says, "How much time we have?" और वो गेस्ट पूछता है कि मेरे पास कितना समय है प्रचार के लिए, That's during day conference, और कॉन्फ्रेंस के समय में, and we'll say, "Oh, you have plenty of time. और वो पासवान कहेंगे कि आपके पास बहुत समय है, Keep on preaching, but we'll go for lunch." प्रचार करते रहिए लेकिन हम भोजन के लिए जाएंगे। So I'll not let you go for lunch. I'll stop before that. और मैं आपके भोजन के जाने के पहले ही रुकाने की कोशिश करूंगा। Amen. आमीन। Open with me the book of Numbers, गिनती के पुस्तक की तरफ अपने नजर को ले चलेंगे। chapter 21, उसका 21वां अध्याय, verse 4 to 9. उसका 4था वाक्य से लेकर 9वां वाक्य तक। Numbers 21, verse 4 to 9. If someone can read it for me, if that is okay. Thank you, sister. This morning, what I'm going to share, the points or subject that God has laid upon my heart to share with you. और यही एक संदेश है जो आज सवेरे के समय परमेश्वर ने मुझे सौंपा है आपके सामने बांटने के We'll लिए। hold on to that text for a moment. हम उस वचन में जो है करीब रहेंगे। If I have to give the title, it will be From the Crossroad to the Cross. अगर उसको एक शीर्षक देना है तो उसका ये होगा कि क्रॉस रोड से लेके, I'm aware that most of us listen or probably get to hear about cross on Good Fridays. और हम जो है क्रॉस के बारे में कई बार गुड फ्राइडेज में ही सुनते हैं, And sometimes the message gets restricted to one day in a year. और कई बार वो संदेश जो है सिर्फ वो एक दिन के लिए रुक जाता है। But I always get fascinated by the cross, मैं हमेशा वो क्रूस से जो है बहुत ही अचंभित होता हूँ, because it is the cross through which I have been given life. और वो क्रूस के द्वारा जो है मुझे जीवन मिला। Now when we look at the crossroad, जब हम वो क्रॉस रोड में देखते हैं या फिर वो जो है चौगुने रास्ते की तरफ देखते हैं, kind of a junction एक जंक्शन की तरफ where we get stuck जहाँ पर हम रुक जाते हैं, because there are multiple options, वहाँ पे कई सारे रास्ते हैं जाने के लिए, but not sure which option to be taken. लेकिन आपको नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है। Afraid of taking decision whether we go wrong or right. आप घबराते हैं इस कारण से कई आप गलत रास्ता ना ले, Confused. कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। So it's a kind of from confusion, a journey from confusion to clarity, कई बार इसको एक कंफ्यूजन से लेके जो है क्लैरिटी के तरफ का एक रास्ता बताते हैं, especially for children of God. ये परमेश्वर के बच्चों के लिए। When I look up to a crossroad, जब मैं क्रॉस रोड की तरफ देखता हूँ, it is a place where crucial decision has to be made. वो एक जगह है जहाँ पर महत्वपूर्ण एक डिसीजन को लेना जरूरी है। Decision that will not only impact your life but people around you. वो डिसीजन ये सिर्फ आपके जीवन में मतलब नहीं रखता, लेकिन वो आपके आसपास वाले लोगों पे मतलब करता है। Not only you but everyone around you. वो सिर्फ आपको ही फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सभी को फर्क A पड़ता है। decision that will have far-reaching impact in your life. एक निर्णय जो आपको
लंबे समय तक आपके जीवन में उसका फल दिखेगा। And if you look little closely or deeply inside, अगर आप उसको गहराई से देखते हैं, a decision that can impact even the coming generation. ये एक ऐसा एक डिसीजन है जो आने वाले पीढ़ियों को भी अफेक्ट कर सकता है, Crossroad, जो है क्रॉस रोड। a point where we get confused. एक जगह जहां पर हम कंफ्यूज्ड हो जाते We're हैं, not sure हम नहीं समझते what kind of decision we can make. किस प्रकार का जो है एक निर्णय लेना है। Hesitation, हमेशा एक रुकावट, not having courage to take decision. हमारे पास वो हिम्मत नहीं होती कि हम उस स्टेप को ले। Not sure what to do. हम नहीं जानते कि हमें क्या करना है। We don't have the boldness to take a step out हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है कि हम वो एक कदम को आगे ले, to take that decision. वो डिसीजन को लेने के लिए। But when you look at the cross, लेकिन जब हम वो क्रूस पर देखते हैं, whenever we look at the cross, जब भी हम क्रूस पर देखते हैं, what is that one word that come into your mind? वो एक शब्द क्या है जो आपके दिमाग में जल्द से आती है? You know, we may have everyone can get different words. हम भिन्न भिन्न लोगों को जो है भिन्न भिन्न शब्द आ सकता है, But in simple way, लेकिन मामूली शब्द में cross क्रूस shows us the death. हमें जो है मृत्यु को दिखाती है। Cross क्रूस shows the cruel punishment that can be given to any human who are convicted in crime. सबसे बुरा एक जो पनिशमेंट जो है एक व्यक्ति को दिया जा सकता है इस पृथ्वी में, वो क्रूस का हो सकता है। A tool that has been used in 6th century before Christ. ये एक ऐसा एक जो पनिशमेंट था जो पुराने नियम में पुराने समय में उपयोग किया गया An था। instrument of execution और ये एक चीज था जहां पर उस गलत करने वालों को जो है सजा दी जाती that थी। resulted in death उसका जो है अंतिम परिणाम ये होता था कि in a big torturous way और बहुत ही कठिन रीति से जो है उस व्यक्ति को मारे जाना। till 4th century after Christ. और यीशु मसीह के चले जाने के कुछ समय बाद तक The story tells us about suffering. Most of the time we think, when we look at the cross, we think about suffering. और जब हम क्रूस पर देखते हैं तो वो एक सफरिंग को दिखाती है। We think about pain. हम दुख को वहां पर महसूस कर सकते We हैं। think about anguishness. हम वहां पर जो कठिनाई वो कठिन हालत से जा रहे हैं उसको हम समझ सकते हैं। When we have picture in our mind of Christ on the cross, we think about shame. जब हम क्रूस पर यीशु मसीह को देखते हैं वहां पे एक शर्मिंदगी को हम देखते हैं। Inhuman cruelty. वहां पर एकदम कठिन रीति से उस व्यक्ति को पीड़ित करना And of course, death too. और उसके अंत में जो है मृत्यु। So sometimes when we look at the cross, it's not very pleasing to us, right? Isn't it? कई बार लेकिन हम क्रूस को देखते हैं तो वो बहुत ही हमें दिल को जो है अच्छा फीलिंग नहीं देता। But in today's generation, we can see that the cross is being used as a fashion pendant around the neck. आज के समूह में हम देखते हैं लेकिन क्रूस को पहनकर चलना जो है आज का एक फैशन हो चुका है। Many people without even knowing what is the meaning of that cross. कई लोग जो है वो क्रूस का मतलब समझते भी नहीं है। It may display the suffering and pain and shame. वो जो है वहां पर एक दुख को दिखा सकती है, एक शर्मिंदगी को दिखा सकती है। But to me, I wanted to encourage everyone this morning to look a little closely to the cross. लेकिन आज सवेरे जो है मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि थोड़ा और गहराई से उस क्रूस के तरफ देखिए। It may show death, वो शायद मृत्यु को दिखाती होगी, show suffering. वो वहां पर कठिनाई But को there's दिखाती, one more thing that God wants us to see on the cross. लेकिन वहां पर एक और चीज है जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम वो क्रूस से देखें। And that is the unconditional, absolute love of Father to His children. वो बिना कोई जो है एक लिमिटेशंस वाला एक प्रेम जो है उस क्रूस पर हमें दिखाई देता To है। the extent where He has laid down His begotten Son on the cross. वो इस हद तक कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को जो है हमारे लिए जो है दान दिया Yes, उस we क्रूस see पर। Christ hanging on the cross. और जैसे हम वो मसीह को क्रूस पर देखते हैं, But that is not the ultimate picture that we should get. लेकिन वो वहां पर रुकता नहीं है या फिर वहां का अल्टीमेट पिक्चर वो नहीं है। But the foundation behind is the love of Father. लेकिन वो क्रूस के पीछे का जो नींव है वहां पर परमेश्वर या पिता का जो प्रेम हम देख सकते The हैं। obedience of Son to lay down His own life because Father wants Him to, because people can come back to Father's fold in अपने love. बेटे की आज्ञाकारिता अपने पिता की तरफ की, ताकि जब वो क्रूस पर जाता है कई लोग जो है पिता की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। I've read a couple of things about the cross. मैंने क्रूस के बारे में कुछ चीज पढ़ाई थी। Was very encouraged to read what Billy Graham said about cross. मैं बहुत प्रोत्साहित था जो पासवान बिली ग्रैहम ने क्रूस के बारे में कहा था। He says the cross shows us the seriousness of our sins. उन्होंने कहा कि वो क्रूस जो है हमारे पाप की जो गहराईपन है वो हमें दिखाती है। But it also shows us the immeasurable love of a father. और वहां पर हम पिता का जो है बिना कोई सीमा का जो प्रेम है वो हम देख सकते हैं। Another wonderful Bible teacher, और एक अच्छे वचन को सिखाने वाले एक व्यक्ति Michael Youssef, माइकल यूसुफ, love the way he has portrayed. और मैंने जो है उन्होंने क्रूस को किस प्रकार दर्शाया है उससे मैं बहुत ही आकर्षित हुआ। Only in the
cross of Christ will we receive power when we are powerless. और वो क्रूस का जो सामर्थ्य है या शक्ति है वो हमें तब सामर्थ्य देगी जब हम अपने आप को शक्ति बिना बलहीन महसूस करते We हैं। will find strength when we are weak. हम बल को तब प्राप्त करेंगे जब हम कमजोर महसूस करते हैं। We will experience hope when our situation seems to be hopeless. हम उस क्रूस में आशा तब देख सकते हैं जब हमारे जीवन में सारे निराशा से भर जाएंगे। Only in the cross और वही क्रूस है we find peace in a troubling situation. जहां पर हम हमारे जो है कठिनाई के समय में शांति को महसूस करते हैं। Let's get back to the text what we read this morning. जो वचन को हमने पढ़ा है उस तरफ हमारे ध्यान को ले चलेंगे। Not going in detail, मैं बहुत ही गहराई में नहीं जाऊंगा, but the portion we just read लेकिन from जो Numbers भाग- 21. जो भाग हमने गिनती की पुस्तक 21वें अध्याय से पढ़ा, What do we see there? वहां पर हम क्या देखते हैं? I'll just go through certain points. कुछ वहां के पॉइंट्स को मैं आपके सामने रखना When you चाहूंगा। read, I'm sure that Holy Spirit will show you more. जब आप उसको वचन को पढ़ेंगे तो आपको पवित्र आत्मा और चीजें को बताएगी। We see a group of people here हम वहां पर एक लोग के झुंड को देखते हैं। on their journey, वो यात्रा में है, led by God Himself. परमेश्वर खुद उन्हें चला रहा है। But this people or generation, लेकिन ये पीढ़ी या ये झुंड, group of people who are impatient, ये झुंड जो है बहुत ही जो है संयम नहीं रखने वाली एक झुंड है। never satisfied or grateful to what God has done to them. जो भी परमेश्वर ने उनके जीवन में किया है उससे वो कभी तृप्त नहीं है। A group of people who forgot how God has led them so far, एक झुंड लोग जो भूल गए हैं कि परमेश्वर किस रीति से उन्हें अब तक ले आए हैं। forgot the miracles and wonderful way that God has led them. जो आश्चर्य काम उनके बीच में परमेश्वर ने किया है वो सब चीज को ये लोग भूल गए हैं। You know, the whole group, whole people, the generation is being led by God Himself. अब ये पूरी पीढ़ी को जो है परमेश्वर खुद चला रहे हैं। What better it could be by being led by the God Himself. इससे और अच्छा क्या हो सकता है कि हम जब परमेश्वर के साथ परमेश्वर हमें ले चलते हैं। But still we do not see a group of people who are rejoicing because God is with them, लेकिन यहाँ पर एक झुंड लोगों को देखते हैं जो खुश नहीं है क्योंकि परमेश्वर उन्हें ले चल रहे हैं, but kind of crying babies लेकिन अब जो है रोने वाले बच्चों के समान है। for the things that they do not have, जो उनके पास नहीं है उसके लिए रो रहे हैं, for the things that we do not see, उन चीजों के लिए रो रहे हैं जो वो देख नहीं सकते, murmuring, grumbling. जो है एक दूसरे के साथ जो है गुड़गुड़ा रहे हैं। I want us to take a moment to reflect our own lives. एक क्षण में जो है मैं अपने जीवन की तरफ जो है आपके जीवन की तरफ आपके नजर को ले जाना That चाहूंगा, includes me also, और मैं वो मुझे भी शामिल करता है or probably more. और उससे भी अधिक। Is this something that relates to our life? क्या ये हमारे जीवन से कुछ जो है सिमिलैरिटी दिखाता We है? have accepted Christ Jesus for sure, हमने मसीह को जो है स्वीकार किया है but जरूर, still we have short-sightedness. लेकिन फिर भी जो है हमारा नजर जो है ज्यादा लंबा नहीं दिखाई देता, बहुत ही पास की चीजों को दिखता है। Looking at what we do not have, जो हमारे पास नहीं है वो चीजों में हमारे नजर जाते हैं, and then praying to God that God give me. और हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ये मेरे पास नहीं है मुझे दे दिए। Complaining that God, He is blessed, but I'm not. इस बारे में गुड़गुड़ाते हैं कि वो भाई के पास वो है लेकिन मेरे पास नहीं है। You know, in our nature, human nature, ये हमारा नेचर है, एक इंसान का नेचर है। if I'm not blessed, that's okay. अगर मैं आशीषित नहीं होता हूँ तो वो ठीक है, But if He gets blessed, then I'm not okay. लेकिन अगर वो व्यक्ति आशीषित होता है तो फिर मैं सही नहीं I've हूँ। never been able to understand why. अब मैं ये अब तक समझ नहीं पाया। So as long as we both are not blessed, that's okay. जब तक हम दोनों आशीषित नहीं है हम ठीक है, But if my brother gets blessed, लेकिन अगर मेरा भाई आशीषित होता है I'm not okay. तो मैं वहां पर ठीक नहीं हूँ। Never learn, a group of people never learn the heart of the God. एक झुंड लोग जो परमेश्वर के हृदय को कभी समझ में नहीं आए, They're always after something, asking for something. वो हमेशा उसके पीछे कुछ चीज को मांग कर चलते हैं। Their vision can go up to the needs to take care of their day-to-day needs. उनकी नजरिया सिर्फ जो है आसपास में दिन प्रतिदिन उनको कैसे चलना है, उसकी जरूरतें क्या है, उसके तरफ उनकी नजर चलती है। But God wanted them to look little deeper. लेकिन परमेश्वर चाहते थे कि ये लोग जो है और थोड़ी गहराई में चीजों को देखें, Align their hearts with Father's heart. अपने दिलों को जो है परमेश्वर पिता के हृदय के साथ जो है मिलावट करे, Develop a relationship with Father वहां पर एक रिश्ते को बनाए परमेश्वर पिता के साथ, who has led them so far, जिन्होंने उन्हें अब तक ले चला है, taken out from the slavery, उन्हें जो है वो बंदी गृह से बाहर निकाला, delivered them, उन्हें वहां से छुड़ाया, provided them. उनके लिए परमेश्वर ने जो है चीजों को प्रोवाइड किया। God wanted them to develop a relationship लेकिन परमेश्वर चाहते थे कि वो एक रिश्ते को परमेश्वर पिता के साथ बनाए, by walking together साथ में चलकर in fellowship. जो है संगति कर कर। They were looking at the hands of God that blesses them. और ये झुंड जो है परमेश्वर के हाथों को देख रहे थे जो उसे आशीषित करते हैं, But God wanted them to see it upon their face
to develop relationship. लेकिन परमेश्वर चाहते थे कि ये लोग परमेश्वर के चेहरे को देखें जो परमेश्वर प्रसन्न होता है He या says, I'm their father and they are mine. नहीं। और ये वचन कहता है कि मैं उनका पिता हूँ और वो मेरे हैं। The relationship. वो रिश्ता, Many times we are so indulged in having an interest to see the blessing that comes from the hands of the Lord. कई बार हम परमेश्वर के हाथों में देखने के लिए बहुत पसंद करते हैं जहां से हमें आशीष मिलती है और हम उसमें उलझ जाते हैं। But probably this morning God is asking us to lift up our eyes and just take it a little higher and to see His face, look up to His face. लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि हमारा नजरिया जो है उन हाथों से जाकर थोड़ा और ऊंचा होकर उनके चेहरे की तरफ हमारे नजर को डालने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। As David talks in Psalm 27, और जैसे दाऊद जो है भजन संगीता 27 में बात करता to है, gaze upon the beauty of my Father, जो परमेश्वर की ब्यूटी को देखना, to dwell in His presence all the day of my life. उसके हुजूरी में मेरे पूरे जीवन के दिनों को जो है बिताना। You know, if you read further in the same portion, अगर ये भाग में अगर आप आगे पढ़ते हैं, in my words, I say this, they came to senses when their fellow Israelites were started to die. और मैं ये अपने शब्दों में कहता हूँ कि इनको जो है होश तब आया जब इसके भाई लोग जो है खत्म हो रहे थे। You know, something happening there उस समय में कुछ हो रहा है, doesn't bother me ये मुझे मायने नहीं रखता until it gets close. जब तक वो मेरे करीब आता है, Until something happens. जब तक कुछ होता है, Until you receive the jolt of your life. जब तक आप जो है कुछ घटना अपने जीवन में देखते हैं। And then we all start praying just like these people prayed. और तब जाकर के हम इन लोगों के समान प्रार्थना करना शुरू करते हैं। We've sinned against you. कहते हैं कि परमेश्वर हमने तेरे खिलाफ When we पाप किया है। spoke against God and you, जब हमने तेरे खिलाफ और परमेश्वर के खिलाफ गलत बात कही, pray for us. हमारे लिए प्रार्थना करो। Are we one of them? क्या हम उनमें से एक है? So comfortable in leading a comfortable life. हम जो है यहाँ पर एक आराम वाली एक जिंदगी को जीने के लिए बहुत ही आरामदायक को पसंद करते हैं। Many things may be happening in the world I can't control. दुनिया में कई सारी चीजें हो रहे हैं, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता। Yes, it is true that we cannot control. ये सही है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर But at least सकते, I can develop a heart. लेकिन मैं एक हृदय को तैयार कर सकता हूँ, Develop a heart एक हृदय को तैयार कर to सकता हूँ understand God's heart for people. कि परमेश्वर के हृदय को समझ पाऊँ। वो God's heart लोग, for people. परमेश्वर के हृदय वो लोगों के लिए क्या है। I may be living in this part of the country. मैं जो है देश के इस तरफ रह रहा हूँ Something may happen in other part of country. और इस देश के दूसरे तरफ कुछ और हो रहा है, It doesn't matter much वो मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती until it comes to the neighborhood. जब तक वो मेरे करीब मेरे समूह में पहुंचती नहीं। I do not know much about the COVID time period in New Zealand. मैं नहीं जानता कोविड के समय यहाँ पर कैसे था। All I heard that this was a big lockdown. मैंने सिर्फ इतना सुना कि बड़ा एक लॉकडाउन यहाँ पर हुआ। But back in India, I've observed a kind of a bigger picture. भारत देश में मैंने और एक बड़े पिक्चर को देखा। First COVID, पहला कोविड everyone was okay सभी लोग ठीक थे because somebody else was dying. क्योंकि कोई और मर रहा था। Second wave, दूसरा वेव जब आया, relatives started to die. हमारे जो है रिश्तेदार जो है खत्म And होने लगे everyone wanted to get the vaccine done. और तब जाकर के सबको जो है तेजी हुई कि वो जाकर वैक्सीनेशन को ले। People get to start to gather together to pray. लोग मिलकर प्रार्थना करने के लिए There शुरू was a किए। seriousness. वहां पर एक गौर था जब कर रहे थे। Was it because of the love for the Lord क्या ये परमेश्वर की तरफ जो प्रेम था उसके कारण था or because of fear? या फिर घबराहट से था? Should we wait for something to happen in our life before we develop the relationship and start looking up to God's face? क्या हमें कुछ घटना के लिए जो है वेट करना है कि हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ते को बनाएं? We also see a God who is compassionate, हम कहते हैं कि परमेश्वर बहुत दयालु है, a generous God. परमेश्वर बहुत ही In बड़े spite दिल of mankind, the sins they continue to do. जो मनुष्य जाति कितना गलती वो करते तो But भी, when they repent, लेकिन जब वो अपने मन को फिराते हैं, here's a father वहां पर एक पिता है standing there खड़े होकर with open wide arms अपने जो है बाहों को खोलकर to receive him, हमें स्वीकार करने to के लिए, forgive, हमें माफ करने के and लिए, give one more opportunity एक और मौका देने के लिए, to walk along with him. उसके साथ चलने के लिए। Compassionate and generous God. बहुत ही दयालु और बड़े दिल वाले We परमेश्वर। also see और भी हम देखते हैं, sins takes life, वहां पर देखते हैं कि पाप जो है मनुष्य के जीवन को खत्म कर देता है, but God gives life. लेकिन परमेश्वर जो है वहां पर जीवन को देता है। Turn with me to the Gospel of John, यूहन्ना का सुसमाचार की तरफ हमारे ध्यान को ले chapter 3, उसका तीसरा वाक्य verse अध्याय, 14 to 17. उसका 14 वाक्य से लेकर 17 वाक्य तक। If someone can read it for me, please.
Very familiar passage, isn't it? और ये जो है वचन का भाग जो है बहुत ही सुपरिचित But है। for a moment this morning, let us compare both these portion in the scripture. लेकिन आज सवेरे के कुछ समय के मनन के लिए ये दोनों भाग को हम साथ में The पढ़ेंगे। Numbers and also the Gospel of John. गिनती का पुस्तक और ये यूहन्ना का सुसमाचार। Numbers, we see Israelites were bitten by snakes. गिनती में हम देखते हैं कि इजराइल लोग जो है सांप के द्वारा जो है काटे गए थे। John, Gospel, New Testament, today's time, और यूहन्ना सुसमाचार आज के समय we see people bitten by sin. हम देखते हैं कि पाप किस प्रकार व्यक्तियों के जीवन को खत्म करता It है। may be a small sin. हो सकता है छोटा पाप हो। Back in Numbers, गिनती के पुस्तक में a little initial pain. Initially little pain. शुरुआत में थोड़ा सा जो है दुख होता है, And then intense suffering. उसके बाद वो बहुत ही बड़े दुख की तरफ चलती है। That is what exactly happened in our time. और वही हमारे समय में होता है। We don't feel the pain when we sin, हम जो है छोटा पाप करते हैं तो वो जो है दुख को महसूस नहीं करते, but we get immune to some sins लेकिन हम कुछ पापों से जो है आदत को डाल देते हैं that take us to the intense suffering. और वो हमें बड़े जो है दुख की तरफ ले चलती है। You know, I'm not talking about the sins that we normally visible, और मैं वो पापों के बारे में नहीं कह रहा जो पाप दिखाई देते हैं, the sins that happens here. लेकिन वो पाप जो हमारे दिमाग में होता है It can be anything. वो कुछ भी हो सकता है, Because nobody is seeing it, we think it's okay. क्योंकि कोई देखता नहीं, हमें लगता है कि वो ठीक है। Nobody will ever see that what's happening in our mind. और दिमाग में जो होता है कोई नहीं देख सकता। My wife and daughter will never understand what is going in my mind. मेरी बीवी और मेरे बेटी कभी समझ नहीं सकते कि मेरे दिमाग में क्या हो But रहा है, three people will definitely know it. लेकिन 3 जन जरूर समझ सकते हैं, Myself, मैं, God, परमेश्वर devil. और शैतान। They will know definitely what's happening in it. और वो जरूर समझेंगे कि क्या हो रहा है मेरे अंदर, But I think nobody is seeing it, nobody knows it, so it's okay. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे देखता नहीं, कोई इसको जानता But नहीं, remember, it will take us to the intense suffering. लेकिन वो हमें गहराई दुख की तरफ ले चलती है। Back in those days, physical death because of snake's bite. उन दिनों में हम देखते हैं कि उस सांप के काटने के द्वारा लोग जो है फिजिकली मर रहे थे। Snake's poison. वो जो है पाप का जो सांप का जो विष था उसके द्वारा मर रहे थे। What happens today, and we fail to understand and see, is there is a spiritual death caused because of sin in the church. I'm not talking about outside the church, within the church. आज के समय में हम ये देखना भूल जाते हैं कि ये पाप के द्वारा जो अंदर हमारे आत्मा का जो मृत्यु होता है ये हम कई बार नहीं देखते। I'm not talking about this church, मैं इस कलीसिया के बारे में नहीं कह रहा, but general church. लेकिन कलीसिया पूरे बड़े पिक्चर में। We think it's okay because everything is fine. We are going to the Sunday service. We are going for prayer meeting. We are getting together for fellowship. But some spiritual sin that is happening, sin that is happening here, we are kind of experiencing the spiritual death. हम जो है कलीसिया में जाते हैं, संगति को करते हैं, कई चीज़ों को करते हैं, लेकिन कुछ पाप जो हमारे अंदर है अगर हम उसको जो है अनदेखा करते हैं तो वो हमें एक मृत्यु की तरफ ले चलती है। But we feel all is well. लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ ठीक है। We tend to display all is well. हम ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक है। Back in those days, bronze snake was lifted up on a pole. पुराने समय में हम गिनती के पुस्तक में देखते हैं वो पीतल का जो सांप है उसको एक छड़ी पे जो है खड़ा किया। Because whoever was bitten by snake, if they look up to that pole, they'll be spared. क्योंकि जो भी उस सांप से जो है काटे गए थे, अगर वो इस खंबे पे हुए इस पीतल के सांप को देखते हैं तो वो वहां से छुटकारा पा सकते हैं। For us, हमारे लिए Christ was lifted on the cross. मसीह जो है वो क्रूस पर चढ़ाए गए, So that whoever believes in him, ताकि जो भी उन पर विश्वास when he करे looks up to the Christ, और जो भी वो मसीह पर देखता है his life is spared. उसका जीवन जो We है receive छुड़ा- salvation. वो जो है उद्धार को देख सकता We है। receive eternity with Christ. हम अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। This morning, आज सवेरे के समय God is inviting everyone, परमेश्वर हम सबको बुला रहे my हैं। brother and my sister. मेरे भाई मेरे बहन, Are you ready to become a channel? क्या आप तैयार है कि वो इस चैनल को बने? Are you ready to commit a life to lift up the name of Christ in your own community? क्या आप ऐसे एक निर्णय लेने के लिए तैयार है कि आप अपने समूह के बीच में मसीह को खड़ा करने के लिए तैयार है? Because out there are people who are going through pain. बाहर ऐसे लोग हैं जो दुख से गुजर रहे हैं, Out there are people who are dying, बाहर लोग हैं जो मृत्यु को देख रहे their हैं, spiritual death, उनकी आत्मा का जो मृत्यु, but they need a life. लेकिन उनको एक जीवन की But जरूरत है। can you be that person क्या आप वो व्यक्ति बन सकते who हैं will lift up the name of Jesus जो यीशु के नाम को उठा सकते in हैं? your workplace, आपके नौकरी के in your जगह, family, आपके परिवार के in बीच, your community,
community. आपके समूह के बीच Can you be that person? क्या आप वो व्यक्ति बन Brother, सकते हैं? can you be that person? भाई क्या आप वो बहन बन Sister, सकते हैं? can you be that person बहन क्या आप वो व्यक्ति बन सकते who हैं will lift up the name of Christ जो Jesus? परमेश्वर मसीह को उठा सकते हैं? It doesn't matter whether what is my ability. और ये मेरे काबिलियत से मैं जो है मतलब नहीं करता। Doesn't matter whether I can preach or not. मैं प्रचार कर सकता हूँ या नहीं वो उससे मायने नहीं All रखता। I have to do is जो भी मैं कर सकता हूँ become a witness to lift up the name of मैं Jesus. परमेश्वर के नाम का गवाह बन सकता हूँ। And can you be that one witness? क्या अब व्यक्ति बन सकते What हैं? we see on the cross, जब हम क्रूस पर देखते हैं unconditional love of the Father, परमेश्वर पिता का जो है सबसे बड़ा प्यार, forgiveness of sins, हमारे पाप की जो है क्षमता, obedience of His Son, हमारे जो है यीशु मसीह की जो है आज्ञाकारिता, victory over shame, pain, suffering and death. शर्मिंदगी के ऊपर और मृत्यु के ऊपर जो है वहां पर जीत को देखते हैं। What we see on the cross, जो हम क्रूस पर देखते हैं strength to face the ultimate battle in our life, और हमारे जीवन के सबसे बड़े जो है लड़ाई को लड़ने का जो है सामर्थ्य दिखाई देता the है, spiritual battle हमारा आत्मिक that लड़ाई, is against the power of darkness. और वो जो है अंधकार की शक्तियों के खिलाफ Cross है। gives us the power to do that. और परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता And है। you have that power to do that आपके अंदर वो सामर्थ्य for है yourself, कि आपके लिए, for your family, आपके परिवार के for लिए, your community, आपके समूह के to लिए, build the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए। What we see on the cross, क्या हम क्रूस पर देखते हैं? God's conquest over Satan. परमेश्वर का जीत शैतान के ऊपर। He's already a failure person. शैतान ऑलरेडी एक हारा हुआ व्यक्ति है। वो हारा, मुझे अच्छा लगता है हिंदी वर्ड, हारा हुआ व्यक्ति है. वो एक हारा हुआ व्यक्ति है। He's a Amen. lost person. The cross has significance वो क्रूस जो है मायने रखता है। as a reminder वो हमें एक याद दिलाती है of what Christ has done for us. मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। It is a powerful symbol वो जो है शक्तिशाली एक चिन्ह है to remind all of us of the price that Christ has paid for you and me. इस बात को याद दिलाने के लिए कितना मूल्य उन्होंने हमारे लिए दिया है ताकि हम जो है जीत पाए। But we hardly understand the value of Christ in our day-to-day life. लेकिन हम वो मसीह के मूल्य को हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में बहुत कम महसूस करते हैं। Many times we miss it. कई बार हम उसको जो है मिस कर देते हैं। 1 Corinthians chapter 1 verse 18. पहले कुरिन्थिया उसका पहला अध्याय 18वां वाक्य। For the message of the cross क्रूस का संदेश is foolishness जो है दूसरों के लिए मूर्खता है। to those who are perishing. जो नाश में जा रहे हैं उनके लिए मूर्खता है। But to those who are being saved, लेकिन जो उद्धार को पा रहे हैं it is the power of God. वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। I'm not talking about the cross that you get in Christian bookstore. मैं वो उस क्रूस की बात नहीं कर रहा जो क्रिश्चियन स्टोर्स में मिलते हैं। I'm not talking about the cross that you get in just to put it on the wall as a souvenir or anything. मैं वो क्रूस के बारे में नहीं बता रहा जो एक सोवेनियर के समान आपके घर के दीवारों में खड़े रह सकते I'm हैं। talking about the cross that Christ has taken up for him on his body for you and me. मैं उस क्रूस के बारे में बता रहा हूँ जो मसीह ने खुद उठाया हमारे लिए। I want us to for a moment to close our eyes. एक क्षण के लिए मैं चाहता हूँ कि हम अपनी आंखों को बंद करें। If I may ask you please. This morning when allow Holy Spirit to speak into your life. आज सवेरे इस बात को आप जो है स्वीकार कीजिए कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में बात करे। Pray that God make my ears sensitive enough to hear your whispers. प्रार्थना कीजिए कि हम वो पवित्र आत्मा के छोटी-छोटी शब्दों को हमारे जीवन में सुन सकते हैं। Think along with me. हमारे साथ सोचिए। Imagine the cross before you, उस क्रूस को आपके सामने दर्शाइए। just in front of you. आपके सामने देखिए। What do you think of the cross? आप वो क्रूस में क्या देखते हैं? And if you take up that cross, if you accept that cross in your life, where do you think that cross will lead you? अगर आप वो क्रूस को आपके जीवन में स्वीकार करते हैं तो आपको क्या लगता है कि वो क्रूस कहाँ ले जाएगा आपको? What does that cross means to you in your life? वो क्रूस आपके जीवन में क्या मतलब देता है? What value the cross gives to you in your life? वो क्रूस का क्या मूल्य है आपके जीवन में? What do you think that what exactly happened on the cross for you and me? सच्चाई में उस क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए क्या हुआ, ऐसा क्या आप समझते हैं? I want you to think for a moment. मैं चाहता हूँ कि आप उसके बारे में एक बार सोचिए। Don't have to wait for Good Friday. आपको गुड फ्राइडे का वेट करने की जरूरत नहीं है। Take this very moment ये क्षण का उपयोग कीजिए to hear from the Lord परमेश्वर से सुनने के लिए। what exactly He did on the cross for you. उस क्रूस पर उन्होंने क्या किया हमारे लिए What it means to you. और उसका हमारे जीवन में क्या मतलब है And how are we going to respond? और हम उसको किस प्रकार से प्रति उत्तर देने वाले हैं।
May God speak to each one of you. परमेश्वर हमसे बात करे, You may open your eyes. हम सब अपने आप को How are we going to respond to this love that God has shown to us on the cross? जो प्रेम परमेश्वर ने क्रूस पर हमें दिखाया है उसका उत्तर हम किस प्रकार दे सकते In हैं? a worldly realm, इस दुनिया के तौर पर we do respond to things that happens to us, जो हमारे साथ होता है उसका एक उत्तर हम जरूर देते हैं, given to us. जो भी हमें दिया If जाता you है। receive gift, अगर आप कुछ भेंट को पाते we हैं, want to return the gift. हमें वो भेंट को वापस देने If की, someone cares for us, अगर कोई आपको संभालता है, we appreciate. हम उनको जो है अप्रिशिएट If करते हैं। someone tells, appreciate the word of encouragement, अगर कोई आपको प्रोत्साहन देता है, we do appreciate each other. हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते If we हैं, receive respect, हम एक दूसरे को जो है आदर करते we हैं, respect others. हम दूसरों को आदर वापस करते हैं। In this world, इस दुनिया में if we can respond to all these things, अगर ये चीजों का सब हम प्रत्युत्तर दे सकते हैं, my question to each one of us in this hall, मेरा सवाल आज के समय ये आपके लिए होगा, including me, मेरे लिए भी, how are we going to respond to the love the Father has shown to us on the cross? जो प्रेम परमेश्वर पिता ने क्रूस पर हमें दिखाया है उसका प्रत्युत्तर हम किस प्रकार देने वाले We हैं? are a happy generation to always receive. अगर हम वो खुश पीढ़ी के समान होते हैं जो हमेशा पाने के लिए खुश रहते I हैं, think it needs to be broken away. हमें उधर से टूटना बहुत जरूरी The है। kind of covering that we have, वो जो है कवरिंग को तोड़ना बहुत the जरूरी है, understanding we have, वो समझ को तोड़ना the बहुत जरूरी है, attitude we have वो एटीट्यूड को तोड़ना of बहुत all जरूरी the है, time receiving. हमेशा कुछ पाने की। But here is this morning that God is giving you opportunity आज सवेरे परमेश्वर आपको एक मौका देता है to break away from that receiving attitude. आपको वो सिर्फ पाने वाली आदत को तोड़ने के Well, लिए। He is your Father. वो आपका पिता है, That's His character to give and bless. वो उनका जो है एक स्वभाव है कि But- हमेशा आपको आशीषित But करे। are we receiving a life just to receive? लेकिन हमारा जीवन क्या सिर्फ हम पाते ही रहेंगे? Can we not respond to the call that He has given to us for each and one of us on the cross? जो बुलावट वो क्रूस के द्वारा हमें मिली है, क्या हम उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे? How do we respond? किस प्रकार रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? Jesus says यीशु कहता है in John 14:15, यूहन्ना का पुस्तक if 14 you love me, अगर आप तुम मुझसे प्रे करते you'll हो, obey my command, तुम मेरे आज्ञा को पालन करोगे, whatever I command. जो भी मैं आज्ञा करता So हूँ। what is that command? वो आज्ञा क्या है? You look at the previous chapter. उसका पिछला अध्याय, It says, a new command that I give you, एक नया नियम मैं तुम्हारे सामने देता हूँ, love one another. एक दूसरे से प्रेम करो, As I have loved you, जिस प्रकार मैंने प्रेम so किया, you must love another. इसलिए तुम एक दूसरे से By प्रेम करो। this, और all men will know और इससे जो है सभी मनुष्य जाति समझेंगे that you are my कि disciples. तुम मेरे शिष्य हो। Love one another. एक दूसरों को प्रेम करो, Love one another. एक दूसरे से प्रेम It's करो। easy to love the people whom you know, जो आपको जानते हैं उससे प्रेम करना बहुत आसान है, who you can relate with, जिससे आप समझ सकते whom you हैं, have known for years. जिससे आप बहुत सालों से पहचानते हैं। It's easy for us to love. आसान है उनसे प्रेम करना, But can you see the love for strangers on the street लेकिन रास्ते में जो चलने वाले व्यक्ति से क्या आप प्रेम कर सकते who हैं, you do not know? जिसको आप नहीं जानते? Do you see that love in your heart? क्या आप वो प्रेम को अपने अंदर पाते And if हैं? not, this morning I am inviting you to commit your life, अगर आप वो नहीं देख सकते हैं तो आज सवेरे मैं आपको क्षणित करता to हूँ pray. प्रार्थना करने के God, लिए। give me the love and burden for those people. परमेश्वर वो प्रेम मेरे अंदर भर, वो बोझ मेरे अंदर भर, ताकि मैं उनसे प्रेम करूं। Give me that burden for those people, वो बोझ दे उन लोगों के that लिए, I can start loving them. ताकि मैं उनसे प्रेम करना शुरू I करूं। remember in my childhood, मैं अपने बचपन को याद करता when my हूँ, parents used to come after day-long tract distribution and going to the village preaching the gospel. जब मेरे माता पिता दिन पूरा जो है काम करते थे एक दूसरे को ट्रैक्स देने के लिए और परमेश्वर की And काम after के the लिए। dinner, when we sit for family prayer, और रात को जब भोजन होने के बाद हम परिवार के प्रार्थना के लिए बैठते हैं, during their prayer time, उस प्रार्थना के समय most of the nights I've seen them crying. और सारे रात को मैंने देखा है कि वो रोते हैं। I'm the only child in my family, मैं ही सिर्फ एक लौता पुत्र हूँ so my thinking was different. और मेरा सोच कुछ अलग था। I couldn't understand why they're crying. मैं ये नहीं समझ सकता था कि क्यों रो क्यों रहे हैं। Never seen them crying for me, मैंने कभी नहीं देखा कि वो मेरे लिए रोए, but crying for some other people. लेकिन किसी और लोगों के लिए रो रहे It हैं। didn't make sense to me. मुझे कुछ समझ में नहीं आता I था। told them that I'm not going to sit with you और मैंने कहा कि मैं आपके साथ नहीं बैठना in चाहूंगा prayer, प्रार्थना के लिए, because I don't see you praying. All I see you is crying. क्योंकि मैंने कभी आपको प्रार्थना करते हुए नहीं देखा, सिर्फ आप रोते हुए मैं देखता हूँ। But now when I look back, लेकिन जब आज मैं पीछे देखता हूँ, I understand the value of those tears. मैं समझता हूँ वो आंसू के जो मूल्य क्या थे, It was because of the love of Christ in them क्योंकि वो परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर था, that helped them to love others. वो उनको जो है अलाउ करता था कि वो दूसरों के लिए प्रार्थना करें। Love and burden for strangers in the villages. दूसरे लोगों के लिए, उस गांव के लोगों के लिए जो भोज, Strangers, love and burden for people who come and abuse them.
when they're sharing gospel. जो लोग उनके खिलाफ खड़े रहते हैं जब वो सुसमाचार को बांटते हैं, उनके लिए प्रेम, Love and burden for persecutors. प्रेम और बोझ वो लोगों के लिए जो उनके खिलाफ कुछ बोलते हैं, Instead of filling their heart with hate, but they were loving them उनके दिलों को जो है क्रूरता से भरने के खिलाफ, because of the love of Christ in them. क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर था. Amen. Amen. Can we develop that love this morning in our heart? क्या हम वो प्रेम को हमारे जीवन में पा सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं? If I can remind you, the gospel is the power of God. मैं याद दिलाना चाहूंगा कि ये सुसमाचार जो है वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है. If you develop that love for your neighbors, अगर आप अपने पड़ोसियों के लिए वो प्रेम को तैयार करते हैं, people you think are the lost in the world, जो लोग आपको समझ में आता है कि लोग जो खो चुके हैं, no doubt there's wonderful joy to worship the Lord in this house together. इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर हम परमेश्वर की आराधना एक साथ कर पाए. But remember, when we are worshiping joyfully, there are many people out there probably crying and lost in the world, not knowing what to do for their life. लेकिन इस बात को याद कीजिए, जब हम खुशी से परमेश्वर की आराधना इस ग्रह में कर रहे हैं, बाहर ऐसे लोग हैं जो आज भी रो रहे हैं और उनके कल के लिए रो रहे हैं. It may be a person right in your family. हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके परिवार में ही क्यों ना हो. It may be a person who is sitting next to you in your at your workplace. हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके नौकरी के जगह हो जहाँ पर आपके करीब बैठता है. It may be a neighbor who is just staying next to you. हो सकता है वो एक पड़ोसी हो आपके घर के बगल में रहने Can we वाला. develop that heart लेकिन क्या हम वो हृदय को तैयार कर सकते हैं, filled with the love of Christ, परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ दिल, to respond to the love that God has shown? जो परमेश्वर प्रेम किया है उसको रिस्पॉन्ड करने वाला दिल. I remember a testimony. मैं एक गवाही को जो है याद करता Well, हूँ. I can say it's testimony or story, but it's a real thing that happens on a day-to-day basis to pastors and missionaries back in India. ये एक गवाही के तौर पर या एक कहानी के तौर पर आप ले सकते हैं, लेकिन ये एक सच्चाई है जो पासवानों के बीच होता है देश में. One of the pastors was coming back to home after conducting his meeting. एक पासवान जो है एक मीटिंग को कंडक्ट कर वापस अपने घर लौट रहे थे. He was returning, and while he was returning on the way, he was blocked by a group of people. और जैसे ही वो अपने घर लौट रहे थे, रास्ते में कुछ लोगों ने उनके रास्ते में रुकावट को डाली Started to abuse him और वो उसको पीड़ित करने लगे and started to beat him up. और वो उस व्यक्ति को मारने लगे. Beat him up very brutally बहुत ही बुरी तरह से उनको मारा. with whatever they had in their hands. जो भी उनके हाथ में था उससे मारा. Stick. जो भी In Hindi we say lat. लाठ को लेकर, Big stick. Iron pipes. जो है वो आयरन के पाइप्स को लेकर It was beaten from the head to the toe. वो सर से लेके पांवों तक उन्हें मारा Left him unconscious, thinking that he was dead. और उनको वहां पर ही बेहोश छोड़ा, ये सोचकर कि शायद वो खत्म हो गए हैं. Police came, और वहां पर पुलिस आती है, took him to the police station. उनको पुलिस स्टेशन ले चलते हैं. Very badly beaten. बहुत ही बुरी तरह से मारा हुआ व्यक्ति. We were in touch with pastor. हम वो पासवान से जो है कनेक्शन में थे. You know, for me, I probably may not be able to express in words the kind of cruelty that happens to pastors or missionaries in India. पासवानों के खिलाफ जो क्रूरता होती है इंडिया में, वो शायद मैं शब्दों में आपके सामने बता नहीं सकता. After a few days, we met him on the Zoom. कुछ समय बाद हमने उनको जूम में देखा This person sitting with all smile. और पूरे हंसी के साथ वहां पर बैठे हुए थे. One of the leaders actually asked him, और वहां पे एक लीडर ने उनसे पूछा, well, let's pray. I mean, what do you want to do in next? और उनसे पूछा कि आप अगला क्या करना चाहते हैं, He हम said, प्रार्थना करेंगे. what do you mean by that? और उन्होंने पूछा कि उसका मतलब क्या है. Well, I do what I have been doing. मैं जो कर रहा हूँ वो सिर्फ कर ही रहा हूँ. He said, no, my question is that since you cannot go back to the same place, now let's pray and ask God's guidance to move to next place. वो लीडर ने पूछा क्योंकि आप वो पुराने जगह वापस नहीं जा सकते, तो हम प्रार्थना करेंगे कि नए जगह कहाँ पर परमेश्वर आपको भेजना चाहते He हैं. asked why we need to pray. और तब वो पासवान ने पूछा कि इसकी प्रार्थना करने की क्या जरूरत है. He got the response that just to get clarity of where God is leading us. और लीडर ने कहा कि सिर्फ क्लैरिटी के लिए कि आपको कहाँ जाना चाहिए. He said, no, Pastor, I'm very clear about it. और वो पासवान ने कहा नहीं, मैं तो बहुत ही क्लियर हूँ. I have been praying about this. मैं उसके लिए प्रार्थना भी कर रहा And हूँ. I'm very clear what I have to do मैं बहुत ही क्लियर हूँ मुझे क्या करना है, and where I have to go. कहाँ मुझे जाना है. And the leader said, okay, tell me. और लीडर ने पूछा कि ठीक है आप क्या करना He said, चाहते to हैं. the same village. और उस पासवान ने कहा कि मैं वही गांव में जाना चाहूंगा. But that's the place you were beaten up badly. लेकिन वही मुल्क था जहाँ पर आपको बुरी तरह से मारा गया, Left to die. आपको वहां पे मरने के लिए छोड़ा गया. He said, I know.
और ये पासवान ने कहा कि मैं जानता हूँ, Because even I prayed when I was getting beaten up. और मैं भी जो वहाँ पर मैं ही खुद मारा गया था, Because I wasn't sure whether I will live after this. और मैं ये भी नहीं जानता था कि मैं और जीवन रहूंगा या नहीं, And I almost prayed my last prayer to God. और मेरा अंतिम प्रार्थना मैंने वहाँ पर कर दिया था। But praise God, He has given me one more life. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे जीवन वापस मिल To गया, go to same people. वही गांव में जाने के लिए, Because that's where God wanted to take me. क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर चाहते कि I मुझे ले जाए। cannot leave them like this. मैं वो मुल्क को ऐसे छोड़ नहीं I सकता, have to take the name of Christ to them. मैं वो मसीह के जो है नाम को वापस लेना You know चाहूंगा। what happened after a few weeks? उसके कुछ हफ्ते बाद क्या He हुआ, went back to the same village. ये व्यक्ति ये पासवान वापस उस गांव He जाते हैं, conducted a meeting. वहाँ पर वापस मीटिंग, About 40 youths gave their life to और Christ. 40 जवान लोग ने जो है अपने जीवन को परमेश्वर के लिए दिया। Can you be that one person क्या आप वो एक व्यक्ति बन सकते हैं to respond to the love shown on the cross? जो क्रूस पर प्रेम आपके लिए दिखाया गया है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए? Can you be that one brother and one sister in this house of God क्या आप वो एक भाई और बहन बन सकते हैं इस to घर में respond to the love of God? जो परमेश्वर के प्रेम को रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? I want to read a portion of a song. I really loved it when I came here. I heard that song. और मैं एक गीत के जो है कुछ शब्दों को बोलना चाहूंगा जो जब मैं यहाँ पर आया था मैंने सुना था। I'm sure you know this song. मैं जानता हूँ कि आप जानते हैं उस शब्द Shout Jesus from the mountain. को। उस पहाड़ से जो है यीशु मसीह के नाम को पुकारो, Shout Jesus in street. और उस रास्ते में जो है परमेश्वर के नाम को पुकारो, Jesus in the darkness. अंधकार में यीशु के नाम को Over पुकारो, every enemy. दुष्ट के सारे जो है नियमों के ऊपर। Jesus for my family. यीशु मसीह मेरे परिवार के I लिए, speak the holy name of Jesus. और मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम को पुकारता Because हूँ, your name is power. क्योंकि उसके नाम में सामर्थ्य Your है, name is healing. उसके नाम में जो है And चमत्कार the है। beautiful line. वो बहुत ही शानदार शब्द है, Your name is life. उनके नाम में शक्ति है। And I tell you, encourage you this morning और मैं प्रार्थना करता हूँ आज के that समय God is calling each one of you sitting here परमेश्वर एक एक लोगों को बुला रहा है जो to यहाँ पर give बैठे that हैं। life to one who has lost it. वो जीवन को जो है वो जो खोए हुए जीवन He के लिए- wants you to take this life out there. ये जीवन को बाहर ले जाने के लिए You may not be going through any persecution here. आप कोई पीड़ा से नहीं गुजर रहे And you होंगे। don't have to go through any और persecution आपको कोई पीड़ा से गुजरने की जरूरत to नहीं है proclaim the name of Christ यीशु मसीह Jesus. के नाम को पुकारने के लिए। But still, लेकिन फिर भी even though we may not be having persecution here, चाहे हम पीड़ा से यहाँ पर नहीं गुजर but at रहे, least we can have the attitude to give whatever it takes to proclaim the name of Christ Jesus. लेकिन वो एटीट्यूड को तैयार कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास है उसको वो प्रेम के लिए वापस करने के लिए। I know many of us sitting here came from different countries. मैं जानता हूँ कि यहाँ पर बैठे हुए कई लोग भिन्न भिन्न राज्यों से आते हैं। Probably majority are from India, from different states. मेजॉरिटी जो है भारत देश से आते हैं, भिन्न स्टेट से। Came here for a purpose. यहाँ पर कुछ उद्देश्य से आए But I want to just look a little beyond. लेकिन मैं आपको आपके नजरिया को जो है थोड़ा और आगे ले जाना चाहूंगा। Purpose for self life and family is good. आपके लिए उद्देश्य होना, आपके परिवार के लिए उद्देश्य होना अच्छी बात है, Nothing wrong about उसमें it. कोई गलती नहीं है। But there's a deeper purpose for which God has called you this लेकिन place. परमेश्वर की जो है उद्देश्य जो है आपके लिए और थोड़ी गहरी है। Can you understand that purpose? क्या आप वो उद्देश्य को समझ सकते हैं? Can you take the cross? क्या वो क्रूस को लेने के लिए तैयार It है? says, oh, whoever loves me, और वचन कहता है कि जो मुझसे प्रेम करता है, follow me. मेरे पीछे मेरा Take पीछा up, करता है, take up the cross. वो उस क्रूस को उठाए। Can you be that one person? क्या वो एक व्यक्ति बन सकते हैं? Taking the cross joyfully, वो क्रूस को खुशी से उठाना, not necessarily talking about suffering, वो सिर्फ दुख के बारे में ही but बताना। suffering will be there. दुख की बात It's हो part सकती of Christian life. है, वो मसीह जीवन का एक Pain भाग will be है। there. दुख होना है A part of Christian life. वो मसीह जीवन का एक भाग है। But above all this लेकिन उन सब से भी ऊपर, and beyond all this, इन सब से भी अधिक there is a love that God has shown एक us. प्रेम है जो परमेश्वर ने क्रूस पर हमें And दिखाया you है। and I need to respond to that love और उस प्रेम को रिस्पॉन्ड करना मेरा एक with ड्यूटी an है। attitude. एक एटीट्यूड के With साथ, whatever may happen in our surrounding, चाहे जो भी मेरे आसपास हो, I commit my life this morning मैं मेरे जीवन को समर्पित करता to हूँ respond to the love that I've seen on the cross उस क्रूस पे जो प्रेम को मैंने देखा है उसको रिस्पॉन्ड for करने you and me. आप और मेरे लिए। Let's close our eyes. हम आंखों को बंद करें, I want to take a moment again as we close this portion. एक क्षण को लेंगे कि ये संदेश को जब हम बंद कर रहे हैं, Think along with me. इस बात को सोचिए मेरे साथ। Allow Holy Spirit to speak to you. पवित्र आत्मा को आपके लिए बात करने के लिए तैयार हो जाइए। How are we going to respond to the love that we have seen on the cross?
ये परमेश्वर का क्रूस का प्रेम है, इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करने वाले हैं? God is inviting every single person in this place परमेश्वर यहाँ पर बैठे हुए सभी को जो है इनवाइट कर रहे हैं to take the name of Jesus यीशु मसीह के नाम को लेने, in the darkness, उस अंधकार में ले in the चलने, difficult situation, उस कठिनाई के समय ले in the चलने, family, वो अपने परिवार in के the बीच, neighborhood, अपने आस पड़ोस at the के बीच, workplace, हमारे नौकरी की in your जगह, community, हमारे समूह के because बीच, that name is power उस नाम में सामर्थ्य and है you have the power in you और वो सामर्थ्य आपके अंदर है because you have the name of Jesus in your life. क्योंकि आपके अंदर वो यीशु मसीह का नाम And through that name of Jesus, है और वो यीशु मसीह के नाम के you द्वारा can give life to other people. आप जो है दूसरों के अंदर वो जीवन को ले आ How are सकते we हैं। going to respond? आप कैसे रिस्पॉन्ड करने वाले The हैं? scripture says वचन कहता to है love Him with all your heart, उनको जो है पूरे हृदय से with all प्रेम your करना, soul, पूरे आत्मा से प्रेम with करना, all your strength, and with all your mind. पूरे आत्मा पूरे दिमाग से प्रेम करना। This morning, I invite you to make a commitment. आज सवेरे मैं चाहता हूँ कि आप एक निर्णय को हमारे दिलों में If लें। you are a person standing at the crossroad, अगर आप एक व्यक्ति है जो वो क्रॉस रोड में खड़े हैं, I invite you to take a decision to move towards cross with a clarity. मैं चाहता हूँ कि आप वो क्रूस की तरफ चल पड़िए जहाँ पर आपको क्लैरिटी दिखाई देगा। You don't have to stand, आपको वहाँ पर खड़े होने की don't जरूरत have to नहीं, raise your hand. आपको अपने हाथों को ऊपर करना नहीं है, Just place your hand upon your heart. अपने दिलों के ऊपर अपने हाथों को Make a रखिए। commitment to the Father who saved your life. एक निर्णय परमेश्वर पिता के साथ कीजिए, Make commitment who has given you life. एक निर्णय जिन्होंने आपको जीवन दिया है उसके साथ करें। The commitment is not with human, और ये कमिटमेंट जो है एक इंसान के साथ नहीं, but commitment to respond to the love is to Father. ये कमिटमेंट आप परमेश्वर पिता के साथ कर रहे हैं। I invite you to put your thoughts this morning and to make this commitment. मैं चाहता हूँ कि आप ये निर्णय को आज के सवेरे के समय ले, To proclaim the name of Jesus यीशु मसीह के नाम को पुकारने, wherever God has placed you. जहाँ पर भी परमेश्वर ने In आपको रखा whatever situation you are, है, जो भी हालत में परमेश्वर ने with आपको, whatever abilities God has given जो you, भी काबिलियत परमेश्वर ने आपके अंदर proclaim the डाली, name of Jesus. परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को Proclaim the ऊंचा name of उठाए, उस Jesus. यीशु मसीह के नाम को ऊंचा Proclaim उठाए, the name of उस Jesus. यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाए, Because remember all the time, क्योंकि हमेशा ये याद रखिए we are saved to serve. हम जो है छुड़ाए गए हैं ताकि हम दूसरों को सेवकाई We are करें। powered to proclaim. हमारे अंदर वो सामर्थ्य है घोषणा करने के We लिए, are called to bring change. हम बुलाए गए हैं ताकि बदलाव को ले As आए। Pastor said this morning, जैसे पासवान ने आज सवेरे this is the कहा, month of change. ये महीना जो है बदलाव का You महीना be है। that person to bring change in your family, वो in your बदलाव community. आपके परिवार में, आपके समूह में वो बदलाव लाने वाले आप बने, And we are built to build the kingdom of God. और हम उसके लिए नियमित है ताकि हम परमेश्वर के राज्य को यहाँ पर ले आए। What is that Holy Spirit speaking to you this morning? पवित्र आत्मा किस प्रकार आज से आपसे बात कर रही है? Let me just pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Everyone who is making a commitment जो भी आज एक निर्णय को ले रहा है, to start the journey from crossroad to cross. एक यात्रा उस क्रॉस रोड से लेकर क्रूज की तरफ, Heavenly Father, we come before you परमेश्वर ये समय आपके हाथों में आते in हैं। the name of your Son Jesus. यीशु मसीह के नाम में आपके हुजूर में This आते morning we thank you, Lord, for the reminder हैं। सवेरे धन्यवाद करते हैं वो याद दिलाने के of लिए, the cross, जो याद क्रूज के बारे में हमें where you दिलाया, have shown your ultimate, unconditional, absolute love for humanity. जहाँ पर आपने सबसे बड़ा प्रेम जो है अपने मनुष्य जाति के लिए है वो आपने वहाँ पर And दिखाया। this morning we are committing, Lord, और आज सवेरे हम जो अपने आप को समर्पित करते हैं, all the brothers and sisters सभी भाई बहन who are committing their life, जो भी अपने जीवन को आपके सामने समर्पित making कर a रहे हैं, decision जो एक निर्णय को ले रहे to हैं, respond to the love they have seen on the cross for जो them, प्रेम को उन्होंने क्रूज पर पाया To उसको pro- रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, to take the gospel, जो सुसमाचार को लेने के to लिए, proclaim the name of Jesus यीशु मसीह के नाम को पुकारने के लिए in their own respective places. अपने अपने जगहों में Use them, Master. उनको उपयोगित करें, Fill them with the Spirit, power of Spirit, Holy Spirit. उनको पवित्र आत्मा से भरिए, Anoint them, Lord, उनको अभिषेक करिए, to proclaim Jesus, यीशु मसीह को दूसरों के सामने ले चलने, to serve, दूसरों की सेवकाई to करने, bring change, दूसरों में बदलाव लाने के and लिए to build the kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य को बनाने के In लिए Jesus' name we ask this prayer. यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को करते हैं। Amen. Amen.